Hello students, today we are going to continue with our chapter Indigo, which is written by Louis Fisher. In the past lecture we studied about the outline of the chapter, introduction about the chapter, how did the sharecropping system exist in India, how were the farmers were being exploited by that system, okay, and how did the exploitation resulted in complaining against that system, okay. And one of the farmers, one of the peasants, Rajkumar Shukla, came up to the annual convention of the Congress party in 1916 to Lucknow, and he spoke to Gandhiji in this regard, okay. But Gandhi was not free at that time. Gandhiji was not free at that time, so he told him about his assignments and his engagements, but Shukla kept on following him everywhere. Okay, in the end, when Gandhi was free at his ashram, he requested him to fix a date, and Gandhi told him that he has to visit Calcutta on such and such a date. So he told him, come there and meet me in Calcutta. Okay, from Calcutta we will be going to your place, Champa. Okay, that was what we have read in this chapter. Now let's start it from. We are starting it from page number 47. Fourth paragraph. Months passed. Is the event that took place when Gandhiji met Rajkumar Shukla in Sevagram. Okay, after many months, no, 3 or 4 months after this incident, Shukla was sitting on his haunches on knees. Okay, at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. When Gandhi arrived in Calcutta, means he was sitting on his knees, means he was waiting eagerly. Okay, means Rajkumar Shukla was already there in Calcutta to welcome or to meet Gandhi. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi means he waited to जैसे गांधी जी के जो वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट थे उनको उन्होंने जो एंगेजमेंट्स थे जो कमिटमेंट्स थे उनको उन्होंने पहले पूरा किया and then he got free and Shukla waited for that period. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. Okay, then both of them took a train to Bihar. Okay, Patna, Bihar, and that train went to Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress party and of India. There he took Gandhiji to the house of Dr. Rajendra Prasad, who was a famous lawyer at that time, and after some time he became the president of Indian National Congress, and when India got independence he was the first president of the independent India. Okay, so they went to Rajendra Prasad's house. Rajendra Prasad was not out of town at that time, he was out of town, but the servants knew Shukla, but the servants were familiar with Rajkumar Shukla. How? As poor yeoman means यहाँ पर एक जमींदार farmer, you can take it. तो इसमें क्या है? They knew him as a yeoman farmer who pestered, as troubled their master to help the indigo sharecroppers. Means Rajkumar Shukla had visited Rajendra Prasad many more occasions. Okay, काफी बार वहां पर वो आ चुका था और विजिट कर चुका था राजेंद्र प्रसाद को. क्यों? क्योंकि वो वहां पर आता रहता था, क्योंकि वो उस टाइम के काफी प्रोमिनेंट फेमस लॉयर थे, तो उस टाइम पे वो रिक्वेस्ट करता रहता था वहां पर आकर कि प्लीज हमारे केस को जो है कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए. काफी रिनाउंड इन्फ्लुएंशियल आदमी थे राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे. तो सर्वेंट्स जो थे वो उससे फैमिलियर थे, उसको जानते थे, बिकॉज ही हैड कम देयर फॉर मेनी times. Okay, so they let him stay on the grounds with his companion. They allowed him to sit on the ground with his companion. And who was his companion? Gandhi, whom they took to be another peasant. And they regarded Gandhi as to be another peasant. How did that happen? Because Gandhi means, earlier it has been told by Gandhi himself, the trademark quality of Indian farmer is that he is poor and weak. Okay, so physically Gandhi was very weak, and his dressing, his simplicity also led to their misunderstanding कि भाई उन्होंने उनकी simplicity, dressing और उनकी weak body को देखकर उनको लगा कि he might be another peasant, तो उन्होंने उसको भी जो है उनको भी जो है they let him stay them on the grounds. राजकुमार शुक्ला को भी और गांधी जी को भी नीचे जो है ग्राउंड पे बैठा दिया.
But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from the bucket pollute the entire. But Gandhi was not allowed to draw water from the well because at that time the evil of untouchability was on its peak. Okay, mainly people were limited, so they had this that kind of notions कि भाई दूसरे touch कर लेंगे तो pollute हो जाए. And the system is, it has been highlighted that even in educated family like that of Rajendra Prasad, the system of untouchability was prevalent. कि ऐसे जो मीन्स अच्छे रिनाउंड फेमस लोग थे उनके घर में भी ऐसा बिलीव किया जाता था, तो उन्होंने जो है गांधी जी को ड्रा नहीं करने दिया वाटर, क्योंकि उनको जिस बकेट को टच करेंगे वो वॉल वेल में जाएगी तो दैट कुड पोल्यूट द एंटायर सोर्स. हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल? मींस हाउ दे कुड नो? यही तो होता है कि जैसे ना गांधी जी, the simplicity of that person, na, the maturity of that person, that he did not tell him for a single time that he was not an untouchable. उन्होंने बताया नहीं उनको कि भाई मैं ऐसे ऐसे I am a lawyer as well और मैं एक अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ. He did not tell him. Okay, उन्होंने उनको मना किया, रिफ्यूज किया, and they took it and he took it. ठीक है, वो उसमें मान गए. उन्होंने अपने बताया नहीं तो उनको कैसे पता चलता कि that he was not an untouchable. That was another quality of Gandhi. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, which was on the way to Champaran. Route means on the way. जैसे पहले वो मुजफ्फरपुर गए. Okay. Now, why did he go to Muzaffarpur? To obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. When Shukla was an illiterate farmer, illiterate peasant, so Gandhi thought that he might not have all the correct facts. हो सकता है इसके पास सब कुछ ना हो सकता है इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. तो पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए गांधी डिसाइडेड टू टॉक टू सम लिटरेट पीपल, है ना, अच्छे रिनाउंड लोगों से बात की जाए. और उस चीज को इंश्योर करने के लिए गांधी जी सीधे चंपारण नहीं गए. ही वेंट टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट. ओके. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani, and in advance he sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, who was a professor at Arts College in Muzaffarpur, whom he had met at Tagore Shanti Niketan School, जिनसे उनकी पहले मीटिंग हो चुकी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन स्कूल में. तो दे वर क्वाइट फैमिलियर टू ईच अदर, तो इसीलिए गांधी जी ने एडवांस में उनको टेलीग्राम सेंड कर दिया. The train arrived at midnight 15 April 1917, and the train reached means at Muzaffarpur 15 April 1917 at midnight. Kripalani was waiting at the station with a large body of students, and Kripalani was already there at the station, and means large body of students means he had many students with him. Okay, बहुत सारे students उनके साथ गांधी जी को रिसीव करने के लिए स्टेशन पे आए थे. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. And Gandhi stayed at Muzaffarpur for 2 days. And where did he stay? He stayed at the house of another teacher, Professor Malkani, जो कि एक teacher थे government school में. It was an extraordinary thing on those days, Gandhi commented. And Gandhi said that it was quite unusual thing in those days. It was an extraordinary thing those days. What was the extraordinary thing? For government professor to harbor means to shelter a man like me. Means a government employee मेरे जैसे आदमी को अपने घर में रखता है. That was quite extraordinary. That was quite unusual thing. Why? देखिए, in smaller localities the Indians were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. Means Indians were so afraid of the Britishers. है ना, इतना ज्यादा जो है वो लोग ब्रिटिशर से डरते थे कि they could not even show sympathy for the advocates of home rule. जो होम रूल मूवमेंट था इंडिया में, जो है there was a movement at that time कि they were so afraid कि जो मूवमेंट वहां पर चला हुआ था, होम रूल मींस स्वराज्य के नाम से एक मूवमेंट चला हुआ था उस टाइम पे, एंड दैट वाज मींस इनिशिएटेड बाय बाल गंगाधर तिलक. ओके, तो उस समय तो मींस जैसे होम रूल मींस जैसे स्वराज्य है ना, अपना राज्य अपना रूल. तो उस टाइम पे जो
जो स्मॉलर लोकेलिटीज थी, छोटे जो शहर थे, टाउन्स थे, इनमें क्या था कि लोग इतने डरते थे, दे वर सो मच अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश दैट दे कुड नॉट शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। जैसे देखिए ये लोग ये मूवमेंट चलाते थे, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब क्या होता था कि अगर ये ब्रिटिशर्स इन मोमेंट के सपोर्टर्स पे कोई एट्रोसिटीज कर देते थे, कोई उनको जैसे लाठीचार्ज हो जाता था या इस तरह की कोई इंसिडेंट हो जाती थी, तो जो इंडियंस थे ना वो इतने डरते थे कि ओपनली तो दे कुड नॉट शो सिंपैथी, इवन सिंपैथी, कि भाई ऐसा भी नहीं बोल सकते थे ओपन उसमें एनवायरनमेंट में बड़ा बुरा हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सिर्फ दो मतलब उनको ये लगता था कि कोई सुन लेगा दैट ही माइट रिपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स और हम उसमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस डर के माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में, कहता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे जैसे आदमी को अपने घर पे रखता है 2 दिन के लिए, who was going to work against them, है ना, उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करना था गांधी जी को। तो कहता है मेरे जैसे आदमी को अगर 2 दिन घर में ब्रिटिश जो क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखता है तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी। समझ में आया कि भाई एक देखिए एक आम आदमी तो चलो फिर भी रिस्क ले सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट की थी ब्रिटिशर्स की, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे जैसे आदमी को अपने घर पे रखता है, मींस मेरा जैसा आदमी हु इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, है ना, तो मैं और मेरे जैसे आदमी को अपने घर पे रख रहा है। कैसे माहौल में, जब लोग ओपनली सिंपैथी भी शो नहीं कर पाते थे होम रूल सपोर्टर्स को। तो ऐसे डर के, ऐसे नेगेटिविटी के, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई आदमी 2 दिन के लिए जो कहता है कि मेरे जैसे आदमी को घर रखता है, दैट वाज क्वाइट अनयूजुअल। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट अराइव्ड एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। मींस जिस तरह का काम वो करने वाला था, दैट गॉट स्प्रेड वेरी क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। और मींस जो है ना एक एक करके जो है मैन टू मैन जो है वो मुजफ्फरपुर तक भी पहुंच गया और चंपारण तक भी पहुंच गया। Sharecroppers, farmers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. मींस फुट में जो पैदल या कन्वेंस, जिनके पास जो भी व्हीकल था कन्वेंस था, उससे दे स्टार्टेड चंपारण से मुजफ्फरपुर आना शुरू हो गए, इकट्ठा शुरू हो गए। ओके, टू सी देयर चैंपियन लीडर। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They met, the Muzaffar lawyers met Gandhi ji and they briefed them, briefly उनको जो है पूरा मैटर उनको बताया। They frequently represented peasants groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. उन्होंने बताया कि भाई frequently, time to time, we represent peasant cases in court. So they told Gandhi ji about their cases and size of their fees. जो फीस वो उनसे लेते थे उनके बारे में भी उन्होंने बताया गांधी जी को। ओके, गांधी chided, scolded, rebuked the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. पहले तो गांधी जी ने जो है ना उनको ही अच्छे से डांट लगाई, इनको लॉयर्स को, कि आप लोग इतना बड़ा अमाउंट लेते हैं उनको एज फीस। वो अगर यार ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अगर उनके पास इतना पैसा हो, अगर वो इतना पैसा पे कर सके जितना आप फीस ले रहे हैं, तो ये सिचुएशन ही अराइज नहीं होनी थी। ओके, अगर इतना पैसा पे करने के लिए हो तो वो उनको लैंडलॉर्ड्स को ही पे नहीं करते कंपनसेशन में। तो कहता है कि मींस आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स एंड गांधी कंक्लूडेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी जो है इस एक्सप्लॉयटेशन का या शेयर क्रॉपिंग का कोई भी मैटर हम कोर्ट में नहीं लेकर जाएंगे। व्हाई टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाते हैं, दैट गिव्स यू वेरी लिमिटेड बेनिफिट्स। हाउ, वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। कहता है कि जहां पर जो पीजेंट्स हैं वो इतने क्रस्ट में से कुचले हुए और फियर स्ट्रिकन डरे हुए हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। उनके लिए जो कोर्ट्स हैं वो यूजलेस है। देखिए क्यों यूजलेस है, क्योंकि कोर्ट में क्या करना होता है, कोर्ट में आपको क्या करना होता है, यू आर टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और आर्ग्यूमेंट्स आप कब कर सकते हैं कि जब आप इक्वली जो है उससे स्टैंड करते हैं, है ना, उतने आर्ग्यूमेंटेटिव हो जितना कि अपोजिट पार्टी हो। अब ब्रिटिशर्स के सामने जैसे पहले बताया कि जो इंडियन फार्मर्स हैं या विलेजर्स हैं या जो पीपल थे, वो लोग खड़े नहीं हो सकते थे उनके सामने, डरते थे उनसे, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे।
ओके, तो दैट टर्न्ड आउट टू बी वन साइडेड आर्गुमेंट। क्या होता था कोर्ट में, एक तरफ आर्गुमेंट होता था, वो अपने आर्गुमेंट्स रखते थे एंड द इंडियन फार्मर्स कुड नॉट स्पीक, और तो क्या होता था, दैट रिजल्टेड इन देयर विक्ट्री। तो गांधी जी ने कहा कि भाई जहां इतने डरे हुए जो फार्मर्स हैं, लोग हैं, उनके केसेस को कोर्ट में ले जाना इज नॉट गुड। नाउ व्हाट विल वी डू? द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि भाई उनके लिए जो पहला रिलीफ होगा वो क्या होगा? टू गेट देम फ्री फ्रॉम फियर। ओके, पहला तो उनके लिए काम हमें ये करना होगा कि वी आर टू रिमूव द फियर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम देयर हार्ट्स। ओके, उनके दिलों से जो ये ब्रिटिशर्स का जो डर है ना, पहले तो उसको निकालना है, बाद में देखेंगे कि शेयर क्रॉपिंग क्या है या जो एक्सप्लॉइटेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू रिमूव दैट फियर। मोस्ट ऑफ द एरेबल कल्टिवेटेड, जिसपे जो है खेती होती थी, लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants. I have already summed up this situation, this condition in past lecture. तो क्या होता था कि जो कल्टिवेटेड, जिसपे जमीन पे खेती होती थी, उसको बड़े बड़े एस्टेट्स में बांटा गया था। ओके, एंड जिसके ओनर इंग्लिशमैन होते थे और वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, जो इंडियन फार्मर्स होते थे। टेनेंट्स मींस एज आई टोल्ड यू, जो किसी की प्रॉपर्टी को यूज करता है, डी पेज सम रेंट, तो क्योंकि वो लैंड यूज करते थे तो 15% पे करते थे, तो इंडियन फार्मर्स जो है उस पे काम करते थे। The chief commercial crop was indigo, and the indigo was the chief commercial crop of that time, है ना, कि इंडिगो की जो खेती होती थी, इंडिगो जो होती थी, वो उस टाइम की चीफ कमर्शियल क्रॉप थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as किस चीज के लिए कंपेल करते थे? इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि 15% पे आपको क्या करना होगा? इंडिगो उगाना होगा, और पूरा का पूरा उस 15% का जो हार्वेस्ट है वो एज रेंट उनको सरेंडर करना होगा। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कैसे होता था? एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से होता था, मींस इट वाज नॉट a contract that got renewed year after year, means it was a system of 5 years, 7 years, 8 years, 10 years, like that. Okay, long term contract. Presently, the British landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. Now, the Britishers came to know that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स से एग्रीमेंट लिए, किस चीज के लिए? कि भाई हम आपको 15, उनको ये पता चल गया सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो मैंने जैसे कल आपको बताया प्राइसेस कम हो गए, टाइम कम लगने लगा, और काफी सारे रीजन हुए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा कि भाई हम आपको सिस्टम से रिलीज कर रहे हैं, अब आप हमें उसके लिए एक अमाउंट पे कर दीजिए उसके बदले में। ओके, 15% को रिलीज करने के बदले में आप हमें कंपनसेशन मनी दे दीजिए। The sharecropping arrangement was some irritating or causing annoyance, है ना, परेशान करने वाला to the peasants and many signed willingly. बहुत सारे लोग तो एग्री हो गए इनिशियली, उनको पता नहीं था कि वो क्या है, तो उन्होंने willingly साइन कर दी कि ठीक है हम तैयार हैं। Those who resisted, those who opposed, engaged lawyers, means lawyers के पास गए, नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, कोर्ट्स में गए। The landlords hired thugs, तो उन्होंने ठग्स हायर कर लिए लैंडलॉर्ड्स को, उनको डरा के धमका के किसी तरह से। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants, और इसी बीच क्या हुआ कि जो इंडिगो की जो इंफॉर्मेशन थी that reached to the peasants as well, okay, who had signed, और जिन्होंने साइन किया था, and they wanted their money back, उन्होंने कहा पैसा वापस दो, है ना। तो ये सारा जो केस था, सारा जो मैटर था, उस पैसे को वापस ले। देखिए उनको शुरू में ऐसा लगता था कि भाई ये हमारे ऊपर जैसे ना कि भाई हर साल कौन पे करेगा, कैसे आएगा, तो इसलिए कौन हार्वेस्ट जो है जुटाएगा, तो हमारे ऊपर इस तरह का कोई पीटी सिंपैथी वगैरह शो करने के लिए हमें रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि इसके पीछे गेम जो है वो अलग ही है, कि भाई वहां पर इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू हुआ है, ज्यादा इंडिगो हो गई है, प्राइसेस कम हो गए हैं, इसलिए ये हमसे पैसा ले रहे हैं। तो जिन्होंने जो है साइन कर दिए थे, उन्होंने कहा नहीं हम भी नहीं मानेंगे इस चीज को, एंड वी वांट आवर मनी बैक। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइम पे जो है क्या हुआ, इसी मोमेंट पे गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ओके, he began by trying to get the facts. Initially he started collecting facts. First he visited the secretary of the British Landlords Association. First of all he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give him
give no information to an outsider. And what did he say? He said that we cannot give any information to an outsider because you belong to a different state, so we cannot give you any information. Gandhi answered that he was no outsider, and Gandhi replied that I am not an outsider. His argument was that, his logic was that because you belong to different state, so we cannot give you any information. And Gandhi's logic was that because I belong to the same country, so I am not an outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. जैसे जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो तिरहुत डिवीजन के थे जिसमें कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, उनके कमिश्नर से मिले. द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी, क्या डराने की कोशिश की उसने मुझे, एंड एडवाइज मी फॉरथविथ टू लीव तिरहुत, और उन्होंने मुझे कहा कि यू लीव दिस प्लेस एंड गो टू योर होम स्टेट, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम्स. Gandhi did not leave, but Gandhi did not leave Champaran or Tirhut. Instead, he proceeded to Motihari. He went to Motihari, the capital of Champaran. That was the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him, and several lawyers were in his company. At the railway station, a vast multitude, means crowd, greeted Gandhi. He went to a house, means in Motihari, he went to a house, and using it as headquarters, continued his investigations. And he started using that house as his headquarters. Okay, or he continued his investigation. भाई सेक्रेटरी ने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कमिश्नर ने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, but from other sources he continued with his investigations. Gandhi, a report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. उनको एक इंफॉर्मेशन मिली उसी टाइम पे, इल ट्रीटेड है ना, एक एक्सप्लॉइटेड जो है, बुरा जो है इसके साथ ट्रीटमेंट हुआ था. तो ऐसी उनको इंफॉर्मेशन मिली कि एक नियर बाय विलेज में दैट ए पीजेंट हैज बीन मालट्रीटेड. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी जी ने क्या सोचा कि भाई मैं जाके वहां पर देखता हूं कि क्या मैटर है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट एंड ही स्टार्टेड इन कैरिज. जो वहां पर जाकर उन्होंने देखने की सोची एलिफेंट बैक. He had not proceeded far. He had not gone far when the police superintendent's messenger overtook him. Yes, police superintendent messenger met him in the way and ordered him to return to town in his carriage. और उनको order किया कि you go back to the town. Gandhi complied, obey. गांधी जी ने उनके इस order को obey किया. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice. जो है वो उनको घर लेकर गया और उनको जो है वहां पर एक ऑफिशियल नोटिस उनको दिया टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. एंड व्हाट वाज दैट नोटिस ऑल अबाउट? दैट वाज अबाउट गांधीज क्विटिंग चंपारण, लीविंग चंपारण. उसमें ऑर्डर था गांधी जी के लिए कि दैट यू शुड लीव चंपारण. गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस. गांधी जी ने उसके एज ए रिस्पांस एक नोटिस साइन किया एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. एंड उस पे क्या लिखा उन्होंने? दैट आई एम गोइंग टू disobey this order. I am not going to follow this order. In consequence, as a result, Gandhi received a summons to appear in court the next day. And as a result, Gandhi got an order to appear in the court next day. क्योंकि गांधी जी ने ऑफिशियल ऑर्डर को डिनाई किया था, उसको फॉलो नहीं किया था. So as a result, he got a summon from court to appear in the court. ठीक है, उनको एक मैसेज मिला कि भाई नेक्स्ट डे आपके ट्रायल होगा कोर्ट में, तो आपको कोर्ट में आना. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. ही रिमेन्ड अवेक. गांधी जी जगते रहे, मींस ही कुड नॉट स्लीप. इसलिए नहीं कि उनको जो है पनिशमेंट हो सकती थी, इसलिए कि भाई उनको ये लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो हु इज गोइंग टू लुक फॉर द सिचुएशन ऑफ द शेयर ब्रोकर्स. कौन उनके एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर अगेंस्ट काम करेगा, कौन इस चीज को देखने वाला है. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. Influential who had influence in society, अच्छे renowned जो फेमस लोग थे, तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने मैसेज किया कि आप अपने अच्छे renowned पॉपुलर जो है ना सोसाइटी में जिनका फेम है, उन फ्रेंड्स के साथ आप आ जाइए चंपारण मोतीहरी आ जाइए. ओके. He sent instruction to the ashram. और उन्होंने क्या किया, आश्रम को भी जो सेवाग्राम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दी, क्योंकि अब मैटर कोर्ट में जाने वाला था. और जब आप इस तरह ट्रायल होता है, जब तक आप अंडर ट्रायल है, कोई अंडर ट्रायल होता है, तो ही कैन नॉट लीव दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो गांधी जी को लग गया था कि अब इस मैटर में इट इज गोइंग टू टेक ए लॉन्ग टाइम, है ना, ज्यादा समय लगने वाला है. तो उन्होंने
आश्रम में से ग्राम में अपने इंस्ट्रक्शन भेज दिए कि कैसे आगे चलाना है। He wired a full report to the Viceroy, और उन्होंने क्या किया, इस पूरे मैटर की एक पूरी रिपोर्ट जो है वायसराय को भी, जो इंडिया के वायसराय थे उस टाइम पे, उनको पूरी रिपोर्ट भी सेंड कर दी। Morning found the town of Motihari black with peasants, and in the morning, this black with peasants means the complete town of Motihari was filled with peasants. There were many peasants. Many peasants had gathered there. They did not know Gandhi's record in South Africa. Means they did not know Gandhi's record in South Africa कि उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, जो है अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, और जो है उसके लिए उन्होंने कितना मूवमेंट चलाया था. They did not know anything about that. They had merely heard. They had only heard. उनके पास एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. कि there is a Mahatma who had come to Motihari to help us. Now he himself is in trouble with the authorities. उनको क्या सुनाई दिया कि अब क्या लगा कि एक महात्मा है जो आए तो हमारी हेल्प करने के लिए थे, लेकिन अब वो खुद ही क्या है, ट्रबल है, खुद ही क्या है, परेशानी में है ना. अथॉरिटीज हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर हिम. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूअस, स्पॉन्टेनियस मींस विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्ट. So spontaneous, अपने आप demonstration in thousands around the courthouse, means that much gathering outside the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British, was the evidence of the fact that their liberation from fear has been started. Okay, कि उनकी जो है लिबरेशन, फ्रीडम जो है इससे, फियर से वो क्या हो गई है, स्टार्ट. The officials felt power. मतलब देखिए इस बात का क्या था, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि भाई अब देखिए क्या होता है पॉलिटिकल रैलीज में आजकल क्या किया जाता है, एक्चुअली भीड़ जुटाई जाती है ना, दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस क्राउड, बट दे पीपल, दोज पीपल हैड कम देयर एट देयर ओन. उनको कोई बुला के नहीं लाया था, वो गांधी जी को मींस सपोर्ट करना चाहते थे. तो इतने सारे लोग, पहले तो लोग जो इतने डरते थे कोर्ट से या पुलिस स्टेशन से या इन चीजों से बहुत दूर रहते थे, है ना, और इतने सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे, इकट्ठा हुए थे. मींस दैट वाज देयर लिबरेशन, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द British. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation, and they became powerless. Means they could not regulate, they could not control that much crowd. So they sought Gandhi's help. उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगा कि भाई आप हमारी हेल्प कीजिए टू कंट्रोल द क्राउड. He helped them regulate the crowd. और गांधी जी ने उनकी हेल्प भी की जो है क्राउड को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करना. He was polite and friendly. All the time he talked with politeness and a friendly manner. He was giving them concrete proof that their power, and Gandhi ji was giving a concrete proof to the Britishers that their might means power, their power, okay, and what was the meaning, that their might hitherto means up to now dreaded and questions, जिस पावर से आज तक लोग क्या करते थे, dreaded, डरते थे, and unquestioned, that they did not raise any question that power, on that power could be challenged by Indians. What was Gandhi ji giving them? Gandhi ji was giving them a solid proof of the fact कि जो आपकी पावर है ना, जिसको आप ये समझते हैं कि वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, that could easily be challenged by the Indian. आज हम इतने लोग इकट्ठा हुए हैं कोर्ट के बाहर, तो आप क्या हो गए, पावरलेस हो गए, आपकी पावर जीरो हो गई. ओके, जिस दिन पूरा कंट्री इकट्ठा हो गया उस दिन you will have to go from the country. Okay, so Gandhi ji was giving them the proof of this fact. The government was baffled, they got confused कि भाई हम ऐसे आदमी के ट्रायल कर रहे हैं जो आदमी हमारी हेल्प कर रहा है. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. जो लॉयर था जो है उन्होंने गांधी जी को, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की भाई आप आज की ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए, some it should be on some other day. Apparently the authorities wished to consult their superiors. What did they want? They wanted to consult their superiors. Okay. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले कि भाई जो आपको मुझे पनिश करना है, सेंटेंस सजा देनी है, पेनल्टी लगानी है, वो आज ही कीजिए ना, दैट शुड बी हेल्ड और टुडे ओनली, आप डिले नहीं कर सकते. ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर कि गांधी जी ने जो है ना कोर्ट में एक स्टेटमेंट पढ़ा, एंड ही एक्सेप्टेड हिज गिल्ट इन दैट स्टेटमेंट. क्या किया उन्होंने,
अपनी जो है उसमें अपनी गलती उन्होंने मानी. He accepted his guilt. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. क्या बताया उन्होंने? That he was involved in a conflict of duties. Okay. Now, what is conflict of duties? Conflict of duties is a situation where we are involved in two different duties and both are equally important. And both are equally important. Okay. So गांधी जी ने भी उनको यही बताया कि I was involved in a conflict of duties. I had two duties to perform and both were equally important. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. इस गांधी जी ने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं है कि that I do not trust or I do not have faith in authorities. I do not have faith in court. I do not have faith in legal system. ऐसा नहीं है कि मैंने आपके ऑर्डर को डिसोबे ऐसे लिए नहीं किया, मैं अपने आप को एज ए लॉ ब्रेकर जो है शो करना चाहता हूँ. On the other hand, to render, to offer the humanitarian and national service. कि भाई मेरे सामने दो चीजें थी. एक तो आपने मुझे ऑर्डर किया था चंपारण से जाने के लिए, ठीक है, तो मैं अपने आप को एक लॉ ब्रेकर नहीं बनाना चाहता था. दूसरी तरफ मैं जो है अपने जो लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करना चाहता था. अब क्या होता है कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ, या तो मैं अपने जो है लोगों की सेवा करूँ चंपारण में रुक के, या आपका ऑर्डर मानूं और चंपारण छोड़ के चला जाऊँ. तो दोनों तरफ जो ड्यूटीज थी वो मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट थी. For which he had come, जिसके लिए भी वो आए थे. Disregarded, disobeyed the order to leave. So I disobeyed the order to leave Champaran. Why? Not for want. Want means lack of respect for lawful authorities. So I disobeyed over your order. I accept my guilt. लेकिन इसलिए नहीं किया कि I don't have respect for lawful authorities. But in obedience to the higher law of our being. But I heard the voice of the highest law, and that is the law of our inner being, the soul, the voice of conscience. Okay, मैंने किसकी सुनी? अपनी कॉन्सेंस की सुनी. और मुझे कॉन्सेंस ने ये कहा कि जिसमें मेरे सामने दोनों ड्यूटीज थी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थी कि भाई मैं एक लॉ को भी फॉलो करूं और लोगों की सेवा भी करूं. ठीक है. अब मुझे क्या था, क्योंकि मैं दोनों में से एक को ही कर सकता था, इसलिए जो है मैंने अपनी कॉन्सेंस की आवाज सुनी और मेरी कॉन्सेंस ने मुझे ये कहा कि दैट आई शुड स्टे हियर एंड टू हेल्प माय कंट्री. इसलिए मैंने उस ऑर्डर को डिसोबे किया. He asked the penalty due and he told the judge that you can put any penalty on me. The magistrate announced that he would pronounce declared sentence सजा after a 2 hours basis, कि 2 घंटे के रिसेस के बाद जो है वो जो भी है वो सुनाएंगे. And asked Gandhi furnish bail for those 120 minutes. उन्होंने गांधी जी को कहा कि you are to arrange bail for 120 minutes. Gandhi refused. गांधी जी ने कहा I don't require that. The judge released you without bail. The judge had to release him without bail. Okay. When the court regathered, the judge said he would not deliver the judgment for several days. What did he tell? That he was unable to deliver the judgment for several days. काफी दिनों तक मैं अपना judgment नहीं सुना पाऊंगा. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. But in that duration, he allowed Gandhi to remain at liberty. कि भाई जब तक आपके लिए नहीं आता है, आपके अगेंस्ट या जो भी मेरा जो फैसला है वो नहीं आता है, तब तक आप क्या कर सकते हैं? चंपारण में फ्रीली रह सकते हैं, लिबर्टी से रह सकते हैं. यू नीड नॉट टू लिव चंपारण. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव इन दिस लेक्चर. द रिमेनिंग पार्ट विल बी टेकन इनटू द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.